السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ نیو ناول ستمگر صنم آپ کی خدمت میں حاضر ہے پارٹ 1۔ یہ ناول بھی آپ کو صرف اسی چینل پر ملے گا۔ امید ہے پچھلے ناول کی طرح اس ناول کو بھی آپ پسند کریں گے۔ تو آ جائیے پھر پارٹ 1 کی طرف چلتے ہیں۔ کیا وہ بہت خوبصورت ہے اذلان؟ انمتا کی آواز پر انہوں نے یکدم چونک کر اس کی جانب دیکھا تھا۔ نگاہوں میں تحیر ابھری تھی۔ متبسم سے کہتے احمر کو صوفے پر ہی لٹاتے، وہ بھی پرسکون سا۔ ان کے ساتھ ہی صوفے پہ آن بیٹھی تھی۔ بتائیں نا اذلان، وہ پھر مخاطب ہوئی تو اذلان نے گہری سانس لیتے ایک نظر احمر کو دیکھا تھا جو نیند میں کسمسایا تھا۔ کیا ہوا ہے انمتا؟ کیا گمان کر بیٹھی ہو؟ اذلان نے احمر کو تھپکتے مانو اسے ٹالا تھا۔ 2 سال ہو گئے ہیں ہماری شادی کو۔ میں یہ بات اول دنوں میں ہی جان گئی تھی کہ آپ کے دل پر کسی اور کی تصرف ہے۔ وہ بہت سکون سے بولی تھی، جبکہ اذلان کا چہرہ متغیر ہو چلا۔ تمہیں مجھ سے شکایت ہے انمتا؟ بے ساختہ ان کے لبوں سے نکلا تھا۔ یہ استفسار تو نہیں تھا، یہ جواب تھا ان کے فکروں پر۔ انمتا ہولے سے مسکرا دی۔ مجھے کبھی آپ سے شکایت نہیں رہی ہے۔ آپ نے کبھی مجھے شکایت کا موقع ہی نہیں دیا۔ میری تمام حقوق پورے کیے ہیں، عزت دی ہے آپ نے۔ وہ ہاتھ تھام کر گویا ہوئی تھی۔ بس یہ خیال ہمیشہ رہا کہ آخر وہ کون ہے جس نے اذلان سعید کے دل کو فتح کر لیا ہے۔ نام کیا ہے؟ میں آپ کے دل کا حال جاننا چاہتی ہوں۔ بس وہ راز جو کبھی آپ نے شاید خود سے بھی نہیں کہا۔ انمتا کیا باتیں لے کر بیٹھ گئی ہو؟ چھوڑو یہ سب اور بتاؤ کھانے میں کیا بنوایا ہے؟ انہوں نے ایک بار اور گفتگو کو ٹالنا چاہا، مگر وہ بھی آج مانو ضد پہ اتر آئی تھی۔ مجھے خوشی ہوگی اذلان، آپ نے ہمیشہ میرے دکھ درد سمیٹے ہیں، مجھے سمجھا سنبھالا۔ یہ سب جان کر آپ کے دل کا بوجھ بانٹنا چاہتی ہوں۔ جانتی ہوں آپ کی محبت لا حاصل رہی ہے، مگر کیوں اذلان؟ کہیں میں آپ دونوں کے درمیان تو دوری کا سبب نہیں بنی؟ کہیں میرا وجود آپ دونوں کی محبت کے قصے کو ادھورا تو نہیں بنا گیا؟ ایک خوف سا ابھرا تھا اس کے دل میں، جیسے اب لب مل گئے تھے۔ نہیں انمتا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ تم کسی کے درمیان نہیں آئی۔ اذلان نے اس کا ہاتھ تھاما تھا۔ ہاں یہ سچ ہے کہ میرے دل میں کسی اور کا عکس بستا ہے، مگر یہ بھی سچ ہے انمتا کہ میں تمہارے ساتھ مخلص رہا ہوں۔ کسی انجان لڑکی کے سحر میں جکڑا رہا ہوں۔ بھول جانا تو آسان ہوتا، مگر تب جب میں جانتا، انہیں مانو تشنگی نے تڑپ کر بڑھایا تھا۔ اذلان نے گہری سانس لیتے کہا تھا، نہ میں نام جانتا ہوں، نہ چہرہ دیکھا ہے۔ میں کچھ بھی تو نہیں جانتا ان کے بارے میں۔ کف افسوس کی آواز کی پہچان تک نہیں ہے میرے پاس۔ ان کے لہجے میں دکھ سا در آیا تھا۔ انمتا نے رشک سے اس لڑکی کو تصور میں دیکھا تھا۔ کیا محبت ایسے بھی ہوتی ہے؟ بنا دیکھے بنا جانے ایک عکس سے محبت؟ اگر وہ مل جائے گی تو کیا کریں گے؟ انمتا کی آواز گونجی تھی۔ پہچان ہی نہیں کوئی تو مل بھی جائے تو کہاں علم ہوگا؟ اور پھر کچھ خواب ادھورے ہی رہ جاتے ہیں۔ وہ چہرہ جھکا کر بولے، مانو اس قصے پر پھر سے زخم ہرا ہو گیا ہو۔ اور پھر میں تمہارے ساتھ مطمئن اور خوش ہوں۔ تم نے مجھے اتنا انمول تحفہ دیا ہے۔ تم ایک بہترین شریک سفر ہو۔ وہ متبسم سے کہتے اس کے ماتھے کو چوم گئے۔ انمتا نے نم نگاہ سے مسکراتے ہوئے انہیں دیکھا تھا۔ کاش اذلان وہ آپ کو مل جائے، آپ کا ادھورا خواب مکمل ہو جائے۔ اس کے دل سے پکار ہوئی تھی۔ نہ جانے وہ کیوں کر ایسا سوچ گئی تھی، مگر وہ اذلان کی خاموشی میں چھپے دکھ کو جانتی تھی۔ پہروں اس نے اذلان کو کسی سوچ میں گم پایا تھا۔ راتوں کو اٹھ کر ٹیرس پر ٹہلنا، وہ مکمل زندگی گزار رہے تھے، مگر ایک کسک ساتھ تھی۔ دل جب بے قابو ہو جاتا تو وہ تڑپ جاتے، مگر یہ بات کبھی بتا نہیں پائے تھے کسی کو۔ انمتا نے اظہار کر کے انہیں ساکت و صامت ہی کیا تھا۔ وہ تو تمام معاملے کو مخفی رکھ رہے تھے، مگر وہ جان گئی تھی۔
अजलान ने सर को पुश्त से टिका दिया। अनमता कब की अहमर को लेकर चली गई थी। उन्होंने गहरी सांस लेकर अपनी जेब से पर्स निकाला था। उसमें सामने ही दो सुनहरी नन्हे से तारे चमकने लगे। असलान ने इन्हें पूरों से निकालकर हथेली पर रखा और माजी का बहाव कुछ इस शिद्दत से उन पर कार फरमा हुआ था कि वो बेचैन सा हो उठते। माजी का ये दर्द जब भी यादाश्त के पर्दे पर वाह होता, इन्हें बेकल कर देता। वो आवाज आज भी मनोअन उनकी समातों पर ठहरी थी। जुकाम ज़दा खूबसूरत आवाज, सुनहरी चमक इन्हें फिर से इस अक्स के सुपुर्द करने लगी। गुजरे जमाने की एक यही तो धुन उन्होंने दिल के खाने में संभाल रखी थी, और साथ जकड़े ये दो नन्हे तारे जो हुमा वक्त उनके पर्स में मौजूद होते। खुदा के लिए जल्दी चलो ना, वरना कयामत मेरी राह देखती घर के सहन में आन खड़ी होगी। लहजे में खौफ और झुंझलाहट यकसाथ नुमाया थी। इंसानों में आयत कोई गाड़ी नहीं, और फिर उसे भी एक लिमिट तक ही तेज रफ्तार मुहैया की जा सकती है। बमुश्किल उसके कदमों का साथ देती। वो यकदम ठहर कर बोली, अच्छा। इस सजा लहजे में जवाब आया, अच्छा ना, माजरत, मुझे बिल्कुल भी इल्म नहीं था। वो बस हमारे रूट की नहीं है। मुझसे गलती हो गई। जो मैंने आज बस से जाने की ख्वाहिश जाहिर की, घर फ़ोन कर देती हूँ तो ये ना होता। खजस्ता की मिनमिनाती हुई आवाज़ निकली। इसीलिए कहती हूँ, चश्मा कभी मत उतारा करो। अब देखो, घर के बिल्कुल मुख्तलिफ रास्ते पर हम मौजूद हैं, और किस्मत की सतम ज़रीफ़ी तो ये है कि यहाँ से कोई बस या रिक्शा सवारी मिलना भी नामुमकिन है। मुझे तुम्हारे साथ कतई नहीं आने की हामी भरनी थी खजस्ता। शदीद गर्मी, गुस्सा, तबीयत की खराबी, उस पर खौफ, तमाम चीज़ों ने एक साथ उस पर यलगार की थी। दिल तो बिल्कुल ना था उसके साथ आने का। शदीद नज़ला, गला ख़राब था, मगर खजस्ता को अपनी डेट शीट लेनी थी, इसलिए वो उसके साथ चली आई थी। खुदा के लिए आयत, चंद लम्हे ठहर जाते हैं, मेरा गला खुश्क हो गया है। देखो, वहाँ सामने गन्ने का रस वाला है, चलो पी लेते हैं। लंबी सांस लेते चंद सानिये के लिए वो रुक गई थी। पसीने से चेहरा तर था, वो वाकई काबिले रहम महसूस हो रही थी। आयत ने हाथ में बंधी घड़ी की जानिब देखा। दो का हिंसा उसे अपनी शहरत पर महसूस हुआ था, मगर यहाँ भी उसकी अजीज जान दोस्त का हाल नज़र अंदाज का हामिल ना था। अच्छा चलो, मगर जल्दी करना। बहुत शुक्रिया मेरी रूह को परवास करने से रोकने के लिए। खजस्ता का शरीर सा लहजा उसे घूरने पर मजबूर कर गया। कॉलेज से निकली तो वक्त काफ़ी हो चुका था कि रश काफ़ी था। खजस्ता को भी बस के जाने का शौक लाहक हुआ था। आयत की जल्दी की तकरार ने खजस्ता को बौखला दिया था। नज़र की कमज़ोरी ने जैसे रही सही कसर भी पूरी कर डाली। धूप से आंखों को बचाती वो सामने से आती बस का नंबर ध्यान से देख नहीं पाई थी, और आयत का हाथ थामकर चढ़ गई। बातों में मगन वो कई स्टॉप के गुजर जाने पर होश की दुनिया में लौटी तो मालूम हुआ, मगर जब तक वो घर के रास्ते के दूसरी सिमत मौजूद थी। बेबसी से खजस्ता पर गुस्सा निकालती वो अब पैदल ही घर जाने वाली राह पर थी। बाबा, क्या बात है, आपकी तबीयत तो बेहतर है। सामने बनी खूबसूरत पुरआसाइश इमारत में से एक इमारत की सीढ़ियों पर बैठे बुजुर्ग उसे अपनी जाने मुतवज्जो कर गए। सेहत क्या बेटा, किस्मत खराब है। खफीफ से लहजे में ना जाने शिकवा हुआ था या मालूमात फ्राहम की गई थी। अब तुम्हें देर नहीं हो रही? खजस्ता की आवाज़ पर उसने घूरा। तुम जाओ, शरबत लेकर आओ। सारी जहां का दर्द इनके सीने में है। वो बुड़बुड़ाती हुई बढ़ी। बताएं बाबा, परेशान क्यों हैं? नौकरी से निकाल दिया है। इतने साल का साथ था, मगर नम लहजे में वजह बताई। मगर क्यों? आयत के अंदाज में ताज्जुब था। साहब बहुत गुस्से में थे। कॉफ़ी मंगवाई थी, मगर लाने में ताख़ीर हो गई। मेगा मशीन ने काम करना बंद कर दिया था, बस उसी वजह से। इतनी सी बात पर वो मुतअज्जिब सी इन्हें देखने लगी। आप मेरे साथ आएं। भला इतनी सी बात पर भी कोई जॉब से फारिग करता है? अपने अंदर उठते इश्तियाल को दबाना उसने ज़रूरी ख्याल ना किया था। जब्बार साहब हैरान सा उसकी जानिब मुतवज्जो हुए। नौकरी तो आपकी नहीं जाएगी, मगर कॉफ़ी मेकर ज़रूर नया आएगा, वो यकीन से कहती ऑफिस के अंदर बढ़ी। कहाँ होते हैं आपके साहब? अंदाज हाकिमाना था। साहब नाराज़ होंगे, जाने दो। जब्बार साहब ने मना करना चाहा था,
नौकरी तो छूट गई है ना, एक आस लगाना ही सही, या तो मिल जाएगी या सुकून मिल जाएगा। हाथ थामे इन्हें तसल्ली बख्श जवाब फराहम किया था। मुझे एक बात तो बताएं, किस कानून के तहत ये इंसाफ पसंदाना फैसला हुआ है? बिना दस्तक दिए वो केबिन में मौजूद थी। अल्फाजों की बाज गुज़श्त पर हाथों में थामा फोन हवा में ही रह गया। सामने मौजूद अचानक नाफिज हुई अनहोनी इन्हें चौंका गई। हल्के मस्टर्ड के कॉटन के सूट में शेफून का दुपट्टा सर पर ओढ़े और स्याह चादर में वजूद समाया हुआ था। चेहरे पर मौजूद मास्क पहने वो उनसे मुखातिब थी। जुकाम की आवाज़ पर शदीद असर कर रखा था, मगर फिर भी आवाज़ बेहद खूबसूरत लगी थी इन्हें। एक भरपूर नज़र उन्होंने उस वजूद पर डाली थी। निगाहें अपने आप ही हाथ में सोने के नाजुक सी ब्रेसलेट में तारों में उलझ कर रह गई थी। मैं आपसे मुखातिब हूँ। बाबा को आप कैसे जॉब से निकाल सकते हैं, जबकि गलती भी आपकी है? वो बिला तौसीफ इन्हें ही कसूरवार ठहरा गई थी। मेरी गलती? अजलान चौंक कर मुतवज्जो होते अपनी निशस्त से उठ खड़े हुए। बेटी जाने दो, जब्बार साहब की आवाज़ में ममनूनियत शामिल थी। बाबा, निगाहों में खामोश रहने का इशारा किया गया था, और ये मंजूर अजलान की नज़रों से मंजर पोशीदा न रह सका। आपने बाबा को बिना सफाई दिए जॉब से निकाल दिया, जबकि इनकी कोई गलती नहीं थी। आप ऐसा हरगिज़ नहीं कर सकते। ये आपके बहुत पुराने मुलाजिम हैं। क्या आप इस बात से अनजान हैं? वो सख्ती से इन्हें इनकी गलती बावर करवा रही थी। अनोखा सा एहसास असलान के दिल में जागा था। इस कदर इस्तेहकाक भरे अंदाज पर क्या कोई इतनी खूबसूरती से भी एहतजाज कर सकता है? नहीं, हरगिज़ नहीं। देखें, अजलान ने कुछ कहने के लिए लब वाह किए। पहले आप मुझे कह लेने दें। मौका रद्द किया गया। इस्तजाब का इस कदर हमला था कि वो अपनी जगह जम कर रह गए। कोई उनसे इस तरह भी हम कलाम हो सकता था, और उन्हीं के ऑफिस में। ऑफिस आपका है तो इसमें मौजूद हर चीज़ की खबर गिरी भी आपकी जिम्मेदारी है। बस तो तय ये हुआ कि गलती बाबा की नहीं, आपकी है। वो जैसे फैसला सुना गई थी, बेसाख्ता उनके लबों पर तबस्सुम दर आया। चंद ही लम्हों में वो अपना आप खो बैठे थे। ठीक है, आप दुरुस्त हैं, मेरी गलती है। अजलान ने टेबल के किनारे पर टिक कर बाजुओं को सीने पर लपेटते कदरे शरीर लहजे में कहा। सामने मौजूद लड़की इन्हें अपने हिसार में बांध गई थी। जब्बार साहब, माजरत, आपसे तल्ख कलामी कर गया। आपको जॉब से बर्खास्त करने की कोई ज़रूरत नहीं। जब्बार साहब ने मुतशक्किराना अंदाज में सर झुका लिया। अब आप खुश मोहतरमा, या कोई और सज़ा तजवीज़ दी जाएगी? इनके अंदाज में ऐसा कुछ था कि आयत बेसाख्ता इन्हें देखे गई। नहीं, अपने जज्बात की रो में बह के वो बहुत कुछ बोल गई थी। मैं हमतन गोश हूँ, कहिए भई। सामने वाले की आंखों में दर आई शरीर सी चमक उसे जुज़बुज़ कर गई। उसके रुख फेरने पर वो धीरे से मुस्कुरा दिए। जिंदगी इस लम्हे इन्हें अपने अंदर महसूस हुई थी। जीत के खुश रंग जायके इन्हें पहली बार अपने अंदर उतरते महसूस हो रहे थे। अनोखे एहसास पर वो खुद भी हैरान रह गए। चंद घड़ियों में कोई उनके अंदर पूरे इस्तेहकाक से विराजमान हो चला था। बाबा, उनके गिर्द बने फसू माहौल से इन्हें निकालने में इस बोझल आवाज़ का हाथ था। जब्बार साहब जाएं। वजूद की फड़फड़ाहट को समझते इजाज़त का परवाना थमथमाया था। केबिन से निकलती वो पलटी। गीली स्याह निगाहों को मुतशक्किराना अंदाज में झलक कर वो आगे बढ़ गई। जब ये एकदम हाथ हैंडल से टकराया था और ब्रेसलेट इसमें अटक गया था। वो जल्दी से उसे गिरने से बचाते थाम कर बाहर निकली, मगर अजलान के दिल में कुमकुमों की इमारत सजा गई। अजलान को महसूस हुआ था उसके जाने पर माहौल ने सांस ली थी। जो खुशबू उसकी मौजूदगी में माहौल पर छाया था वो छिन से टूटा था। क्या किसी में लम्हों में सहर करने की ताकत होती है? वो खुद से हम कलाम थे। मुझ जैसे होशमंद बंदे को लम्हों में तस्वीर कर लिया। मेरा दिल तो मेरे काबू में रहा ही नहीं, हमेशा वो हैरान थे, बेहद हैरान। वो, बहुत शुक्रिया बेटी, तुम तो मेरे लिए फरिश्ता बनकर आई थी। जब्बार साहब ने मुतशक्किराना अंदाज में उसके सर पर हाथ रखा था। ये तो अल्लाह की मेहरबानी है बाबा, कि उस पाक ज़ात ने मुझे चुना और मैं यहाँ पहुँच गई। वो हंसते हुए तमाम किस्सा सुना गई। तुम्हें कब से ढूंढ रही हूँ, कहाँ चली गई थी? खजस्ता की कोफ्त में डूबी आवाज़ अपने से कुछ दूर से सुनाई दी। अच्छा बाबा, मैं चली, अल्लाह हाफिज, उजलत में कहती खजस्ता की जानिब दौड़ी थी, जो उसे घूरते हुए ऑफिस की सीढ़ियाँ उतरते दिख रही थी। कहाँ रफू चुकर हो गई थी तुम? जानती हो कि परेशान हो गई थी। इस ऑफिस में क्या करने गई थी तुम?
वो तो शुक्र तुम्हें अंदर जाता देख लिया था, वरना। अच्छा गुस्सा मत हो, चलो। हाथ थामे वो उसे लिए आगे बढ़ गई। खजस्ता ने गुस्से से अपना हाथ छुड़वाया था। अंदाज में वाज़ेह सवाल थे। आयत जानती थी जब तो वो बता नहीं गई देगी उसका गुस्सा तमाम होने वाला हरगिज नहीं है। हद हो गई है आयत। तमाम किस्से के मालूम हो जाने पर खजस्ता का हाथ बड़ी तेजी से उसकी कमर पर आया था। क्या जरूरत थी प्राय मामले में अपनी टांग अड़ाने की। बाबा परेशान थे ना यार, वो मिनमिनाई। हाँ, अभी जो घर जाकर भाभी तुम्हारी दुर्गत बनाएंगी, उस वक्त यही बाबा तो बचाने आएंगे। पूरे 2 घंटे लेट हैं हम। क्या? वो ताज्जुब से घिरी देखने लगी घड़ी। आज तो खैर नहीं जब्बार साहब, वैसे आपने अपनी मदद तलबी के लिए एक ही कारिंदा रखा है, मगर बहुत बेहतर कारकर्दगी दिखाई है उसने। कॉफ़ी का घूंट भरते वो मुस्कुराए, जैसे अपनी ही बात से लुत्फ उठाया हो। मगर आपको इसकी ज़रूरत नहीं थी, मैं बस उस वक्त गुस्से में था, वरना आपको कभी कोई भी इस ऑफिस से निकाल नहीं सकता। बहुत माजरत साहब, मुझे इल्म होना चाहिए था। वो कदरे शर्मिंदा से हो गए। चले, इस तरह आपको इल्म तो हो गया कि आपकी बेटी आपसे बहुत मोहब्बत करती है। बिटिया तो थी वो साहब, मगर मैं खुश नसीब नहीं हूँ। अजलान ने चौंक कर जब्बार साहब की जानिब देखा। कुछ अनचाहा सा उनकी समात पर आन पड़ा था। मतलब वो आपकी बेटी नहीं थी? नहीं साहब जी, बाहर मिली थी। वो तो मैं परेशान सा बैठा तो पास चली आई। क्या? कॉफ़ी का मग हाथ से छलका था। साहब जी, अजलान के अंदाज पर जवार साहब हैरान हुए थे। कौन थी वो, कहाँ गई, कुछ इल्म है? इन्हें लगा इस पल जिंदगी उनके हाथ से निकल रही थी। अभी कुछ देर पहले तो इर्द गिर्द उजाले बिखरने शुरू हुए थे। ये कैसे आन की आन में आंधी चल निकली थी। नहीं साहब, मुझे तो नाम तक का इल्म नहीं। बस इतना मालूम है कॉलेज से लौट रही थी, मगर मुगालते में गलत बस पकड़ ली तो यहाँ आ गई। किसी और देश की मुसाफिर। मुट्ठी से रेत एकदम फिसल गई थी। अनदेखी सूरत दिल के निहार खानों में कैद हो चुकी थी और यहाँ कैद करने वाला लापता ठहरा था। आप जाएं। इन्हें अपने दिल में घुटन सी महसूस हुई थी। अपनी टाई की नाट ढीली करते वो बेदम से कुर्सी की पुष्ट से सर टिका गए। कहाँ ढूंढूं आपको, कैसे तलाशूं? निगाहों ने आपको देखने की अभी ख्वाहिश भी नहीं की थी, आपने तो आवाज़ की पहचान भी मुझसे छीन ली। दिल में जागी नारसाई की लहर ने इन्हें जलाकर खाक सर कर रही थी, मगर वो बेबस थे। जान गए थे हाथ चांद तक नहीं पहुंच सकता, मगर दिल का क्या करते कि उसी को पाने के लिए मचल उठा था। कोई तो सिरा हाथ को दे जाती। ना इन निगाहों ने आपकी सूरत को देखा, ना समातें आवाज़ को पहचानती हैं, मगर फिर भी दिल में बड़ी शिद्दत से आन मौजूद हुई हैं। वो खेलने से पहले ही हार गए थे। कब अफसोस था उन्होंने पानी का गिलास थामा, जब निगाह सामने दरवाजे के पास ठहरी। वो बरकरफ्तारी से आगे बढ़े। कालीन पर गिरे 2 तारे उन्होंने किसी मता जहां की तरह अपनी हथेली में भर लिए। अब बस यही याद थी जिसके सहारे वो याद कर सकते थे। ये कैसी आजमाइश है यार, अब किसी को पाबंद कर आया हूँ और आज लगता है खुद किसी का पाबंद हो गया हूँ। सीने में सांस कैद हो गई थी। आयत, तुम्हें नहीं लगता शहबाज भाई को इन तमाम हालात का पता होना चाहिए? रुबाब भाभी की ये सब ज्यादतियाँ अब नज़रअंदाज करने के लायक हरगिज भी नहीं रही। खजस्ता ने गुस्से से कहा। उसे क्या होगा भला खजस्ता? और फिर तुम जानती हो मेरी जुबान बहुत अरसा पहले ही बोलने के अमल से ना आशना हो गई है। ओ मेरी प्यारी शहजादी, क्यों कहती हो ऐसा? अच्छा ये सब बातें छोड़ो। मैं इसलिए तो नहीं आती कि ये तुम्हारी उतरी हुई शक्ल देखने को आंखें तरस जाती हैं। वैसे भी मुझे तुम इस तरह बातें करती बिल्कुल अच्छी नहीं लगती हो। मुझे तो तुम इन 2 आंखों को सोचते हुए अच्छी लगती हो। खजस्ता ने उसे मोहब्बत से गले लगाया था। अपनी अजीज जान दोस्त का यूं बुझा बुझा लहजा उसे कतई नापसंद था। खजस्ता, आयत ने टोका था। वैसे सच खजस्ता, मैं अक्सर सोचती हूँ अगर तुम जैसी मुखलिस और बेहतरीन दोस्त मेरी ज़िंदगी में ना होती तो ना जाने मेरा क्या होता। अम्मी अब्बू के जाने के बाद, भाभी के तल्ख व सख्त रवैये और बर्ताव के बाद कोई भी नज़र नहीं करता। बस खाला ही तो हैं जो मेरे लिए भाभी के ताने और तंज को नज़रअंदाज करते हुए रिश्ते को निभा रही हैं। और एक तुम हो जिससे मैं अपने दिल का हाल बयान कर सकती हूँ, जो मुझे तसल्ली देती है, मानो इस लम्हे मेरी ज़िंदगी सांस ले लेती है। मुझे तुम्हें कुछ कहने के लिए लफ्ज़ों का चुनाव नहीं करना पड़ता। तुम मेरी ज़िंदगी का अहम हिस्सा हो। आंखों से झरना बिना आहट दिए बह बह निकला था। आयत, खुद को यूं कमज़ोर ना करो।
तुम देखना, तुम्हारी जिंदगी में जल्द खुशियां दस्तक देंगी, खजस्ता ने मुस्कुराकर कहा। खजस्ता की वालदा नगीन और आयत की अम्मी अंजुम दोनों दूर परे की बहन लगती थीं। अंजुम की वफात के बाद एक वही थी जिन्होंने रुबाब के सख्त मिजाज, बदतमीजी के बावजूद भी आयत का साथ ना छोड़ा था। कुछ वजह के खजस्ता का घराना पढ़ा लिखा और खाता पीता था। दूसरी वजह यह भी बनी थी रुबाब के रवैये की कि वो हाकमाना तबीयत की मालिक थी। किसी की दखल अंदाजी उससे बर्दाश्त नहीं होती थी। मगर नगीन से रिश्ता बहुत गहरा और पुराना था, इसलिए रुबाब उनके सामने कुछ खामोश रह जाती थी। ओह, मेरा आज क्यों आना हुआ ये तो बताना ही भूल गई। खजस्ता ने सर पर हाथ मारा तो वो चौंकी। तुम तो जानती हो कुछ वक्त से मामा का इरादा था मामू के पास जाने का। कौन? सुफियान मामू जो दुबई में होते हैं वो ना? आयत ने तस्दीक चाही। हाँ, वही काफी अरसे से बुला रहे हैं, मगर किसी न किसी वजह से जाना ही नहीं होता था। कभी वीजे का मसला तो कभी मेरे पेपर्स का। मगर इस बार मामा ने पहले बाबा से कहकर वीजे लगवा लिए थे, वो आ चुके हैं। और मामू की छोटी बेटी शुमाइल की रस्म भी है। खजस्ता ने तफसील से आगाह किया। क्या तुम दुबई जा रही हो? कितने दिन के लिए और वापसी कब होगी? आयत यकदम परेशान हो उठी थी। बस 2 माह के लिए जा रहे हैं, ज्यादा नहीं रुकेंगे। तुम परेशान नहीं हो, मामा ने तो तुम्हारे लिए भी शहबाज भाई से बात की थी, मगर वो नहीं माने। खजस्ता तसल्ली देते गोया हुई। तुम्हें लगता था भाभी राजी हो जाती? और 2 माह? उफ खजस्ता, मैं तुम्हारे बगैर कैसे रहूंगी? फिर खाला वो इस खबर से परेशान हुई थी। हाँ जानती हूँ, इसलिए मामा ने बात की थी। मगर वैसे आयत, मैं ये सोचती भी हूँ कि जब तुम्हारी शादी हो जाएगी तो फिर क्या? खजस्ता ने एकदम जुबान दांतों तले दबाई थी। वो रवानी में कुछ ज्यादा बोल गई थी। माजरत आयत, पता नहीं कैसे ये सब कह गई। वो कदरे शर्मिंदा हुई थी। नहीं खजस्ता, माजरत करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये मेरी ज़िंदगी का वो बाब है जो बहुत भयानक है, पर है तो ना। बात ना करके उसे बदला तो नहीं जा सकता। गहरी स्याह आंखों में नमी सी उतर आई। खैर, तुम ये सब बातें छोड़ो और ये बताओ कि जाना है तो फिर यकीनन तुमने खरीदारी भी ज़रूर करनी होगी। अपने आंसुओं पर मुस्कुराहट की तह चढ़ाकर वो बात बदल गई। खुद पर पहरे बिठाने का फन तो कब का सीख चुकी थी, अब भी लम्हा भर लगा था संभलने में। खजस्ता की नजरें इस भीगी मुस्कुराहट से अनजान तो ना थीं। जो कुछ उसने जिंदगी में बर्दाश्त किया था, उसके बाद तो जैसे मुस्कुराहट भी रूठ गई थी। कहो ना क्या हुआ? खुद पर घड़ी उसकी निगाहों से कुतराते, कांधा हिलाते मुतवज्जो किया। नहीं कुछ नहीं हुआ। हाँ, शॉपिंग तो करना है, तो चलो फिर कल चलते हैं हम शॉपिंग के लिए। उससे बात बदलता देख वो मुस्कुराते हुए बोली। कल? मगर पहले भाभी से पूछना पड़ेगा। उसे एक और फिक्र हुई। उसकी फिक्र तुम मुझ पर छोड़ दो, मैं शहबाज भाई से खुद इजाजत ले लूंगी। नहीं माने तो मामा है ना, भाभी का मुझे मालूम है, सो बहाने बनाएंगी। बुरी बात खजस्ता, अगर भाभी ने सुन लिया तो? आयत की निगाह दरवाजे की जानिब दौड़ी। कुछ नहीं होता और क्या, अब सिर्फ इस कोल्ड ड्रिंक से ही गुजारा करवाओगी? मुझे बहुत भूख लग रही है। तुम्हें तो लगती नहीं, मगर मुझे लगती है। या अल्लाह, एक तो तुम्हें भूख बहुत लगती है। आओ, तुम आने वाली थी इसलिए मैंने पहले ही बना लिया था खाना। किचन में चलकर खाते हैं, तुम्हारी पसंद के आलू वाले चावल बनाए हैं। वो खजस्ता को लिए किचन की जानिब बढ़ गई। देखो अज़लान, ये बहुत ज़रूरी हो गया है। यूं आखिर कब तक तुम अहमर और अदीरा को दूसरों के हाथों सौंप सकते हो? क्या तुम्हारी अकल अब तक ये बात तुम्हें समझा नहीं पाई कि बच्चों को माँ की ज़रूरत है? सलमा बी ने अपनी गोद में सर रखकर लेटे पोते के बालों में मोहब्बत से हाथ फेरते हुए कई बार की दोहराई हुई बात एक बार फिर कही। मैं आपकी बात समझ रहा हूँ अम्मू जान, मगर मैं ये नहीं कर सकता। उन्होंने भी हर बार का दिया हुआ जवाब दिया था। क्यों, कोई माकूल वजह भी तो हो। आखिर क्या बुराई है? इंसान अपने बच्चों के लिए क्या कुछ नहीं करता है। सलमा बी ने कदरे सख्ती से कहा, इस बार जैसे वो इनके वही पुराने जवाब पर तप गई थी। अम्मू जान, आप सब जानती हैं। उनकी सरगोशी के से अंदाज में कहने पर सलमा बी ने उनकी जानिब निगाह की। अजलान के चेहरे पर बहुत कुछ खो देने का मलाल वाज़े था। वो अपनी निगाहें चुरा गईं। पर बेटा, अहमर और अदीरा को मुलाज़िमों के सुपुर्द तो नहीं किया जा सकता। उन्होंने अपनी बात जारी रखी। क्या तुम्हारी तवज्जो इस जानिब नहीं कि अहमर की सेहत दिन ब दिन गिरती जा रही है? और रही अदीरा की बात, तो उस बच्ची को भरपूर तवज्जो की ज़रूरत है। तुम इतने कुनज़हन तो नहीं हो, इस बात का अंदाज़ा तुम्हें बखूबी है। अजलान, कि मुलाज़माएँ तुम्हारे बच्चों की देखभाल तो बेशक कर सकती हैं, मगर माँ की तरह उनका ख्याल या तरबियत नहीं।
وہ بس اپنا کام پورا کرتے ہیں، مگر ماں اپنے خون سے بچے کو سینچتی ہے، ان میں آنے والے خلا کو محبت کے رنگوں سے بھرتی ہے۔ کیا تم اپنے بچوں کے حسن میں یہ کمی برداشت کر پاؤ گے؟ سلمیٰ بھی بہت محتاط جملوں میں ان کی ذہن کو دوسری جانب بہا لے جا رہی تھیں، مگر وہ بھی تو بے بس ہو چلے تھے۔ قسمت نے دھوکہ ہی تو کیا تھا، پہلے دل کے تخت پر ایسی ہستی کو بٹھا دیا جس کا کوئی نشان بھی نہ تھا، اور پھر ان کی بہترین دوست ہم سفر کو ان سے دور کر دیا تھا۔ شکوہ گنا تو وہ بھی تھے۔ ارے امو جان، اس میں کیا بڑی بات ہے؟ آپ ہیں تو تربیت و پرورش کے لیے خود کو سنبھال کر وہ لہجے کو سرسری سا بناتے گویا ہوئے مانو ان کی تمام باتیں ان کی سماعتوں سے ٹکرائی ہی نہ ہوں۔ میں تمہاری جوابی کارروائی سے باز آئی ازلان۔ تم یہ بات بخوبی جانتے ہو کہ گاؤں اور شہر کے مستقل پھیرے مجھ سے نہیں لگتے، اور احمر کو تمہارے بغیر رہنا منظور نہیں۔ ادیرہ کو وہاں کا ماحول برداشت نہیں ہوتا، معصوم بیمار پڑ جاتی ہے، اور مجھ سے اس تیز رفتار شہر میں رہا نہیں جاتا، وحشت سی ہوتی ہے۔ ان کی بات پر ازلان بے ساختہ مسکرا دیے۔ وہ جانتے تھے سلمیٰ بی کو شہر میں رہنا ناپسند تھا، اس لیے وہ کبھی کبھی ہی آتی تھیں۔ تو امو جان، لبنہ آنٹی اور اقرا بھی ہیں۔ یہ خوب کہی تم نے۔ اب بچے کیا تیرے میرے میں پروان پرورش پائیں گے؟ ساری زندگی کبھی یہاں کبھی وہاں۔ دیکھو ازلان، تمہاری شادی کر لینے سے مجھے اور سنوبر کو تسلی ہو جائے گی۔ کسی کا نہ صحیح، احمر اور پھر ادیرہ کا تو سوچو۔ 5 ماہ کی ہے وہ، اسے ماں کی ضرورت۔ آپ کی تمام باتوں کو قبول کر لوں تو کیا آپ اس بات کا بھروسہ مجھے دے سکتی ہیں کہ آنے والی ماں ہی ثابت ہوگی؟ گہری سنجیدگی سے وہ اٹھ کر بیٹھ گئے۔ دل کا خوف وہ زبان پر لے آئے تھے۔ ہمیں اللہ سے اچھے کی امید ہونی چاہیے، پہلے سے اپنے دل کو وسوسوں کے جال میں کیوں ڈالیں؟ میرا دل نہیں مانتا امو جان، سوتیلی ماں سوتیلی ہی ہوتی ہے، چاہے اس کا وجود کتنا ہی محبت سے گندھا کیوں نہ ہو۔ کاش کہ تم نہ جاتی انمتا، ہمارے بچے یوں ماں کی ممتا کو ترس نہ رہے ہوتے۔ نہ جانے کیوں میری زندگی کا ہر باب نامکمل ہی ٹھہرتا ہے۔ اگر جو شک میں پڑ جاؤ تو ساری تدبیریں الٹی ہیں۔ کتنی ایسی مثالیں ہیں کہ سوتیلی ماں نے سگی ماں سے بڑھ کر مان و ممتا دی ہے۔ بس شرط یہ ہے کہ امید کی لو کو بجھنے نہ دو۔ دنیا میں سب برے نہیں ہوتے، اگر ایسا ہوتا تو نظام کارواں نہ چل رہا ہوتا۔ ٹھیک ہے امو جان، اگر آپ کو یہ سب بہتر معلوم ہوتا ہے تو جیسے آپ کی مرضی۔ دل نے پہلے بھی تو کسی کو قبول کیا تھا، آپ نہیں شامل تو کوئی بھی ہو، کیا فرق پڑتا ہے؟ اب تو ویسے بھی دل کو عادت ہو گئی ہے تھکنے کی، بڑی مشکل سے اپنے دل کو مضبوط کیا تھا۔ اگر آپ مل جاتی تو مجھے یقین ہے انمتا میرے روبرو آپ کو لا کھڑا کرتی۔ وہ ایسی ہی تو تھی، مگر آپ نہ ملتی۔ جب کسی اور کو ہی آنا ہے میری زندگی میں تو وہ آپ کیوں نہیں ہو جاتی؟ یکدم وہ الجھے۔ تم راضی ہو؟ سلمیٰ بی کی آواز میں حیرت تھی، جیسے ان کے کانوں کو یقین ہی نہ آیا ہو۔ جی، آپ کے آگے کبھی جیت پایا ہوں۔ ان کے ہونٹوں پر پھیکی سی مسکراہٹ تھی، جیسے خود کی بے بسی پر ہنسنا چاہتے ہوں۔ آج سے 5 سال پہلے بھی ان کی زندگی میں ادھم مچا تھا، اور اب بھی نہ تب وہ کچھ کر پائے تھے اور نہ اب کوئی چارہ تھا۔ مگر آپ میری اس بات کو محفوظ کرنے امو جان کہ حامی میں نے بچوں کی وجہ سے کی ہے۔ سلمیٰ بھی تو ان کی ہاں پر بھی صد شکر ادا کر رہی تھی۔ کتنے وقت سے وہ انہیں راضی کر رہی تھی، مگر اذلان تھے کہ ان کی کسی بات کو ماننا تو کیا سننے کے لیے بھی تیار نہ تھے۔ امو جان، یہ شادی صرف بچوں کے لیے ہوگی تو آپ ان کی ماں ڈھونڈیے گا۔ بہت ٹھہرے لہجے میں وہ اپنی بات واضح کر رہے تھے۔ بابا، سلمیٰ بی نے کچھ کہنے کا ارادہ کیا تھا، مگر پھر ان کی توجہ احمر کی جانب دیکھ کر چپ ہو گئی۔ ارے بابا کی جان، کیا ہوا؟ انہوں نے گود میں لیتے اسے بوسہ دیا تھا۔ بابا، آج پھر آپ کی وجہ سے مجھے ٹیچر نے ڈانٹا تھا۔ احمر نے ناراضگی ظاہر کی۔ کیوں؟ ہمارے شہزادے کو ڈانٹ کس وجہ سے پڑی؟ آپ نے کوئی شرارت کی تھی؟ اذلان نے شریر لہجہ اپنایا۔ نہیں بابا، وہ برا مان گیا تھا۔ پھر؟ اذلان نے مسکراتے ہوئے آنکھیں سکیڑتے پوچھا۔ آپ کی وجہ سے میں نے ہوم ورک نہیں کیا تھا، آپ کل دیر سے آئے تھے۔ اوہ سوری میری جان، بابا کل مصروف تھے، اس لیے تو بابا مجھے بھی مما لا دیں۔ اذلان نے سلمیٰ بی کی جانب بے ساختگی سے دیکھا۔ بابا، مما آ جائیں گی تو وہ مجھے ہوم ورک کروا دیا کریں گی، جیسے سمی کی مما اسے کرواتی ہیں، پھر ٹیچر مجھے ڈانٹیں گی بھی نہیں۔ احمر نے معصومیت سے اپنی محرومی بتائی۔ اذلان بے ساختہ اسے دیکھے گئے۔ چند لمحے لگے تھے انہیں بولنے میں۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، لے آئیں گے، پر ابھی تو بابا سے کام چلائیں نا آپ۔ چلو آئس کریم کھانے چلیں۔ معصوم ذہن چند پل میں ہی بہل گیا۔ اوکے، مگر مجھے 2 آئس کریم کھانی ہے۔ ہاں ہاں ٹھیک ہے چلو، مگر گڑیا، بابا وہ نہیں چلے گی۔ اذلان مسکرا دیے۔ بیٹا،
बहन अभी छोटी है ना, बाहर जाकर नहीं खाएगी, वो हम उसके लिए घर में ले आएंगे, ठीक? अम्मुजान मैं थोड़ी देर में आता हूँ। सलमा बी को अपनी जानिब तकता पाकर वो बोले बाहर निकल गए। सलमा बी ने गहरी सांस ली। जैसे भी सही अजलान बिल आखिर मान गए थे। इन्हें याद था अनमता से शादी के बाद वो कुछ खामोश से हो गए थे। अनमता के साथ अच्छा बर्ताव था मगर कुछ अधूरा था। ना जाने क्यों अजलान मेरी अकल यहाँ काम नहीं करती। अभी का इनकार मान सकती हूँ कि अनमता है, मगर अनमता से शादी भी उतना ही अजीब मामला था। कौन सी वजह है जो तुम्हारे दिल में कैद है? वो किसी गहरी सोच में घिर गई थी। क्या इनसे अजलान के अंदाज पोशीदा थे? नहीं तो मैं जानती हूँ अजलान, ये फैसला करना तुम्हारे लिए बेइंतहा मुश्किल रहा है। अनमता तुम्हारी जिंदगी का अहम किरदार है, मगर मुझे उम्मीद है तुम्हारी जिंदगी संभल जाएगी। आने वाली तुम्हें इस बेहिसी के भंवर से बाहर निकाल लाने में कामयाब ठहरेगी, क्योंकि यादों को दिल में तो रखा जा सकता है, मगर इनके सहारे जिंदगी नहीं गुजारी जा सकती। तुम भी जल्द ही इस बात को कबूल कर लोगे। मुझे अपने रब पर यकीन है। सलमा भी दिल ही दिल में सोचती फोन की तरफ बढ़ गई। एक लड़की तो पहले ही उनकी नज़र में थी, बस अजलान के मान जाने का इंतज़ार कर रही थी। बस कर दो खजस्ता, और कितनी शॉपिंग करोगी यार? मेरा चल चल कर हशर ख़राब हो गया है और तुम्हारी चीज़ें ही पूरी नहीं होती हैं। आयत उकताए हुए लहजे में बोली। अरे अभी की ही कहाँ है, अभी तो और भी करना है। उस पर आयत की बात का कोई असर हुआ नहीं था। अपने दांतों की नुमाइश करते बोली, खुदा को मानो खजस्ता, तुम 3 घंटे से मुझे घुमा रही हो और तकरीबन हर दुकान पर ठहर जाती हो कुछ न कुछ लेने के लिए। उसने घूरा। क्या मसला है तुम्हारे साथ यार? मैंने शहबाज भाई से 8 बजे तक का कहा था और अभी सिर्फ 5 ही तो बजे हैं। वो चिढ़कर बोली। अच्छा माफी बताओ, कहाँ जाना है? आयत ने हथियार डालते, इस तरफ चलते हैं। मॉल की एक जानिब बनी जूतों की दुकान की जानिब खजस्ता ने इशारा किया और आगे बढ़ गई। आयत वो देखो, सामने शॉप पर वो कलर्स बॉक्स मलिहा के लिए कैसा रहेगा? नजर दौड़ाते अचानक खजस्ता ने कहा, अच्छा है। वो बेजारी से मुतवज्जो हुई। ठीक है, तुम वो ले आओ, जब तक मैं ये सैंडल पसंद करती हूँ। खजस्ता चंद सैंडल में से एक उठाते मसरूफ से अंदाज में गोया हुई। नहीं, मैं अकेली नहीं जाऊंगी, तुम साथ चलो। उसने साफ इनकार किया था। उफ आयत, सामने ही 2 कदम पर तो शॉप है, चली जाओ, घर जल्दी भी तो जाना है। जाओ। खजस्ता ने उसे आगे धक्का दिया। तुम भी ना। वो मुंह बनाती शॉप की जानिब बढ़ गई। जानती थी उसकी बात मानी तो जाएगी नहीं। भाई जरा ये हील का एक साइज छोटा दे दे। खजस्ता ने साथ खड़े हाथ में चंद डब्बे उठाए शख्स की जानिब देखते सरसरी से लहजे में कहा। वो गालबन उसी की जानिब मुतवज्जो था। पुकार पर आंखों में हैरत उभरी। अरे ऐसे क्यों देख रहे हैं? ये मुझे पसंद है, आप ला दें। वो अपने अंदाज में गोया हुई थी और यावर ने बेसाख्ता सामने मौजूद आईने में खुद को देखा था। मैं आपको सेल्समैन लग रहा हूँ? खुद को भरपूर तरीके से देखते वो सदमे से पलटा। खजस्ता ने नजर उठाकर खासा तवज्जो से देखा। जींस की पैंट पर सफेद टी शर्ट पहने हल्की सी शेव के साथ वो वाकई सेल्समैन तो नहीं लग रहा था, मगर हाथों में 4 जूतों के डब्बे थामे हुए था। अब सूरत से तो काम नहीं होते ना? वैसे लग तो आप इस दुकान के मालिक भी नहीं रहे, शाहाना से अंदाज में कहती। उसने नाक से फिसलता चश्मा ठीक किया और दूसरी चानी पलटकर हील देखने लगी। ये तो जुल्म है। हाँ माना, आपका दूसरा अंदाजा भी दुरुस्त है, मगर यावर को अचानक बात करने में मजा आया था। भाई मेरे, मुझे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता आप कौन हैं, मुझसे गलती हो गई बस। यूं बात के तूल देने पर वो चिढ़ सी गई थी। अल्लाह को माने, मैं बिल्कुल आपका भाई बनने पे राजी नहीं हूँ। यावर उसकी बात पर फौरन से बोला। तो मुझे भी आपसे रिश्ता बनाने का कोई शौक नहीं मोहतरम। और कहा ना गलती में हो गया, अब क्या जान लेंगे? बैग थामने पर वो तब कर बोली थी, नहीं, जान तो हम देंगे, आपको तो अपना बनाएंगे। यावर के लब फुड़फुड़ाए थे। खजस्ता का तपा तपा चेहरा उसे भाया था। लम्हे में फैसला हो गया था कि जिंदगी उसे उसके साथ गुजारनी है। खजस्ता ने एक नज़र उसके मुस्कुराते चेहरे पर डाली और सर झटक कर बाहर निकल गई, जबकि वो कितने ही लम्हे वहां थमा रहा। सर बहुत माजरत, आपको खुद आना पड़ा। आप कह देते तो हम खुद आ जाते। किसी आवाज ने यावर का सत्ता तोड़ा था। नहीं, अगर मैं ना आता तो जिंदगी ना मिलती। खैर ये शूज का साइज दुरुस्त नहीं है। मैं यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा तुम्हें देता चलूं। वो मसरूफ हो चुका था। इसे पैक कर दें। आयत ने काउंटर पर सुनहरी रंग का पेंसिल बॉक्स रखते कहा। सुने मिस, कुछ देर बाद पर्स में पैसे रखते खुद को पुकारे जाने वाली आवाज पर
उसने चेहरा घुमाया था। जी कहे। वो मुकम्मल मुतवज्जो हुई थी। सॉरी, पर अगर आपको परेशानी ना हो तो क्या ये कलर बॉक्स आप मुझे दे सकती हैं? नरम अंदाज में गुजारिश की गई थी। ब्लू जीन्स पर ब्राउन शर्ट पहने, हाथ में मोबाइल और गाड़ी की चाबी थामे, नजरें उसके चेहरे पर टिकी थीं। कपड़ों से उठती परफ्यूम की खुशबू आयत को अपने अंदर घुलती महसूस हो रही थी, जो उसे सुकून दे गई। हाँ, सुकून तो इस चेहरे ने भी दिया था। 5 साल, हाँ इतना ही वक्त तो हुआ था, वो उंगलियों के पुरों पर गिन सकती थी। इस एक मुलाकात ने ही तो दिल को कैद में डाला था। ये अब भी वैसे ही हैं जैसे पहले थे। नहीं, बल्कि मजीद शख्सियत में वकार आया है। मिस। खामोश खड़ी वो गुजरे वक्त में उलझी थी, जब अजलान की आवाज़ उसे वहां से खींच लाई। आप नहीं देना चाहती तो कोई बात नहीं है। वो मुस्कुराए थे। दरअसल मेरा बेटा मुझसे पिछले 3 दिन से जिद कर रहा है कि उसे यही वाला कलर बॉक्स चाहिए। काफ़ी जगह मालूम किया, मगर नाकामी हुई, और यहाँ भी लास्ट पीस है। मैं पूरी शॉप देख चुका हूँ। बस इसीलिए कह रहा था, ये मुझे दे दें, आप दूसरा ले लें। उन्होंने आयशा से बात मुकम्मल की। उनका अंदाज उसे अपने दिल पर महसूस हो रहा था। दिल का बंद दर फिर अचानक खुल गया, जहां से आने वाली हवा उसे बेहाल करने लगी। मगर मंजिल जो पहले लापता थी, अब उसका रास्ता भी जुदा हो गया था। अरे नहीं, कोई बात नहीं, सॉरी कहने की कोई ज़रूरत नहीं, आप ये ले सकते हैं। मैं दूसरा कोई ले लूंगी। आयत ने पैक हुआ बॉक्स अजलान की जानिब बढ़ाया। वो खुद को संभालना जानती थी। अजलान ने एक नज़र उलझ कर देखा। कुछ था जिसने इन्हें उलझाया था, मगर क्या, वो समझ नहीं पाए। एक अनजानी सी पहचान उनके जहन में उभरी, जैसे वो किसी कहानी के पहले किरदार रह चुके हों। आपके बेटे की पसंद बहुत अच्छी है, वो मुस्कुराई। जी, वो अपनी कैफियत पर काबू पाते हल्का सा मुस्कुराते अपनी जेब से वॉलेट निकालते बोले, जबकि वो आगे बढ़ गई। ये ले, इसका बिल बना दें। काउंटर पर क्रेडिट कार्ड रखते कहा। इसका बिल तो वो अदा कर चुकी हैं सर। उन्होंने कर दिया है। जरा फासले पर मौजूद आयत की तरफ उन्होंने इशारा किया, जो अब दूसरी जानिब मुतवज्जो थी। जी जी सर, ओके शुक्रिया। सेल्समैन की बात पर वो सर हिलाते आयत की जानिब घूमे। सुने, ये लें। जी। अजलान की पुकार पर वो चौंक कर पलटी थी। बेइरादा ही अजलान का बढ़ा हुआ हाथ उसके हाथ से टकरा गया। हाथ में मौजूद चंद कांच की नारंगी चूड़ियां शोर मचा उठी थीं और अजलान के जहन को भी उलझा गईं। उनकी आंखों पर जैसे सुनहरी सितारे की चमक जागी थी। ओह सॉरी, वो शर्मिंदा हुई। अजलान का दिल लम्हे के लिए ठहर गया था। माजी की याद बड़े गलत वक्त पर उनके जहन में उभरी थी। वो बामुश्किल संभले। वो, मैं ये देने आया था, आप इसकी अदायगी कर चुकी हैं। ओह! पर इसकी कोई ज़रूरत नहीं। पर उन्होंने कुछ कहना चाहा। तुमने भी अभी तक लिया नहीं, इतनी देर हो गई है। खजस्ता की आवाज़ पर वो चौंकी। हाँ, ले लिया है। 2 मिनट। उसने ग्रीन कलर का बॉक्स उठाया। ये क्या? मैंने सुनहरी कहा था, ये मुझे पसंद नहीं आया। वो कहाँ है? खजस्ता ने निगाहें दौड़ाई। वो खामोश दोनों की बात सुन रहे थे। असल वजह कोई एहसास था जिसने इनके कदमों को रोक रखा था। वो हैरत से आयत को तक रहे थे, जैसे कोई पहचान को ढूंढ रहे हों। वो उन्होंने ले लिया है सर, पर आप ये पैसे रख लीजिए, बल्कि इस बॉक्स को मेरी जानिब से अपने बेटे को दे दीजिएगा। आयत की पुकार पर वो ख्याल से चौंके। कौन से पैसे? कैसा बॉक्स? दरअसल वो कलर बॉक्स इनके बेटे को चाहिए, मगर मैं ले चुकी थी, इसलिए मैंने इनको दे दिया, तो ये पैसे दे रहे हैं, बस इतनी सी बात है। क्यों, आप वो क्यों लेंगे जबकि ये ले चुकी हैं? खजस्ता ने बरहमी से कहा। खजस्ता, क्या बदतमीजी है, ऐसे अनजान लोगों से कोई इस तरह बात करता है। लम्हे में अजलान के सामने किसी का अक्स आया था। वो भी तो अनजान थे, और कोई उनसे मुखातिब होकर इन्हें सहर कर गया था। सॉरी, मैं इसकी तरफ से माफ़ी चाहती हूँ। और तुम चलो हर किसी से लड़ने लग जाती हो। खजस्ता का हाथ थामकर वो बाहर निकली थी। वो तो मुझे बाहर मिली थी। अनजान लोगों से कोई इस तरह बात करता है? जहन में आवाज़ उभरी। दो अलग अंदाज कोई पहचान नहीं है, मेरा वहम है और कुछ नहीं। खुद ही अपनी बात पर सर झटका था उन्होंने। अरे पर ये पैसे, अजलान ने पीछे से आवाज़ दी, मगर खजस्ता इतनी ज़ोर से बोल रही थी कि इनकी आवाज़ दब कर रह गई। दरवाजे पर हुई दस्तक पर रुबाब को उठना पड़ा था कि आयत को वो ऊपर छत से कपड़े लाने के लिए भेज चुकी थी, इसलिए चारों न चार इन्हें ही सहमत करना पड़ी। अरे आबदा भाभी, आप, काफ़ी दिनों बाद आना हुआ। हाँ, तुमसे ज़रूरी बात करना थी। अंदर आते वो बोली। आबदा उनकी मोहल्लेदार थी और रुबाब से काफ़ी दोस्ती थी, इसलिए अक्सर आना जाना लगा रहता था। ज़रूरी बात, सब खैरियत है? रुबाब के अंदाज में हैरत थी। हाँ, सब खैरियत है, बल्कि अच्छी खबर है तुम्हारे लिए। फ़ोन पर ये बताना ठीक नहीं लगा, तो सोचा तफ़सील से तुम्हें मिलकर ही बताऊँ। तुमने मुझसे आयत के रिश्ते का कहा था ना? हाँ, कुछ वक़्त पहले कहा था, बल्कि तस्वीर भी दी थी आपको कि अगर नज़र में कोई रिश्ता हो तो बताइएगा।
हाँ, उसी के सिलसिले में बात करना थी। एक रिश्ता है, मेरी दूर की बहन की रिश्तेदार है सलमा खाला। वो अपने पोते के लिए लड़की ढूंढ रही हैं। मुझसे जिक्र किया था कुछ वक्त पहले, तो तुम्हारा ख्याल आते ही आयत का बताया था। तस्वीर भी दिखा दी थी, मगर इस वक्त इनका पोता मान नहीं रहा था, तो बात आई गई हो गई। मगर कल उनका फोन आया था, कह रही थी वो राजी है अब शादी के लिए। आयत का पूछा कि कहीं रिश्ता तो तय नहीं हो गया। मैंने बता दिया अभी तक कहीं मामला तय नहीं पाया है, तो अब मिलने के लिए आना चाहती हैं। आबिदा ने तफसील से तमाम बात बताई। ये तो बहुत अच्छी बात है भाभी, हम तो खुद उसके लिए बेहद परेशान हैं। रिश्तों की तलाश तो कब से जारी है, मगर आप तो जानती हैं आयत के साथ हुआ सानिहा कोई इतना भी मामूली नहीं कि लोग आंख बंद कर जाएं। रिश्ता डालने की बात अभी शुरू भी नहीं होती है, खबरें पहले पहुंच जाती हैं। रुबाब के लहजे में उकताहट डर आई। तुम परेशान मत हो, मैंने इन्हें पहले ही सब बता दिया है। सलमा खाला ने किसी किस्म का कोई एतराज नहीं किया। इन्हें तो आयत काफी पसंद आई है। अच्छा वाकई, रुबाब ने हैरत से कहा। खैर चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है भाभी। वैसे लड़के का नाम क्या है और काम क्या करता है? उम्र उम्र कितनी है? एक ही साथ कई सवाल पूछे गए थे। अजलान सईद नाम है। वो यहीं शहर में तन्हा रहता है। वालिदैन काफ़ी साल पहले गुजर गए। बाकी फैमिली गांव में रहती है, और फैमिली भी मुख्तसर सी है। एक बहन है सनोबर, जो शादीशुदा बाल बच्चों वाली है और अजलान से बड़ी है। वो भी गांव में सेट है। मगर आपदा तफसीलात देते ठहर गई। मगर क्या भाभी? अस्सलाम वालेकुम आपदा भाभी। ओह, वो कुछ कहती जब आयत चाय लिए अंदर आई। वालेकुम सलाम, कैसी हो बेटा? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। दादी कैसी हैं? आपदा भाभी की सास की खैरियत दरियाफ्त करते वो मुस्कुराई। फिर जवाब मिलते ही वो लौट आई थी। माहौल की खामोशी उसे चौंका गई थी, मगर नज़रअंदाज करना बेहतर अमल था कि इसके सिवा कोई चारा ना था। जी आप क्या बता रही थी? रुबाब ने चाय थामते फिर से सिलसिला कलाम वहीं से जोड़ा जहाँ से थमा था। हाँ, अज़लान की उम्र हमारी आयत के मुकाबले थोड़ी ज़्यादा है। मतलब कितनी ज़्यादा? रुबाब के पुरस्कुन अंदाज में ज़रा कमी नहीं आई थी। वो इसी तरह चाय की चुस्की लेती रही। 36 बरस का है। आबिदा के लबों ने धीरे से सरगोशी की थी, जैसे वो ये बात कहते शर्मिंदा हुई हूँ। लो भला ये भी कोई फर्क हुआ भाभी? वैसे भी शौहर को बीवी से बड़ा ही होना चाहिए। रुबाब ने उनकी बात को हवा में उड़ाया था। हाँ तुम शायद दुरुस्त कह रही हो, मगर फिर भी आयत अभी 21-22 साल की है। तकरीबन 13-14 साल का फर्क, क्या ये मुनासिब है? अरे रहने दे भाभी, उम्र का भी भला कोई मसला है? मगर एक बात और भी है रुबाब। इस बार लहजा मजीद धीमा था। भाभी अब क्या बात है, एक बार ही तमाम बात कह देना। वो शादीशुदा है और 2 बच्चे भी हैं। रुबाब को चाय पीते फंदा लगा था। भाभी? उसने हैरत से देखा। दरअसल सलमा खाला की बहू अनमता कुछ माह पहले एक हादसे में चल बसी। बच्चे छोटे हैं, माँ की ज़रूरत है इन्हें, इसलिए सलमा खाला जल्द शादी करना चाहती हैं। बेटी 5-6 माह की होगी, नन्ही सी जान है, माँ के लिए तड़प रही है, और बड़ा बेटा भी 4 साल का है। मगर भाभी? रुबाब उनकी बात पर चुप हो गई। रुबाब मैं जानती हूँ तुम क्या सोच रही हो। शहबाज कभी नहीं मानेगा, मगर तुम ये भी तो सोचो, जो आयत का माजी है, इसके बाद तुम्हें ऐसा लगता है कि कोई शहजादा उसे रुखसत करवा के ले जाएगा? तुम ही कहती हो जो रिश्ता आता है फिर वापसी का रास्ता भूल जाता है। तुम उसे गनीमत जानो कि रिश्ता सामने से चलकर आया है। सब जानते बूझते बात भली थी, रुबाब की सोच में उतर गई। फिर लड़का बेहद सुलझा हुआ समझदार है। आयत के लिए इससे बेहतर रिश्ता नहीं मिलेगा। फिर तुम भी तो जल्द अज जल्द उसकी शादी करवाना चाहती हो। शहबाज उसकी वजह से ही मुल्क से बाहर नहीं जा पा रहा है कि कंपनी वीज़ा सिर्फ उसकी फैमिली का दे रही है। आयत की मौजूदगी इस काम में रुकावट साबित होती है। सलमा खाला भी एक हफ्ते में ही रुखसती करवाना चाहती हैं, जहेज और फजूल किस्म की रस्मों से भी नहीं। बस यूं जानो 2 कपड़ों में रुखसत करके ले जाएंगी। रिश्ता रुबाब की सोच के मयार पर काफ़ी हद तक पूरा उतरता था। खैर तुम अच्छे से सोच लो, फिर तुम्हें जो मुनासिब लगे, मगर जल्दी करना क्योंकि इन्हें जल्दी है। आयत ना सही कोई और सही, मगर ये एक अच्छा रिश्ता है। ऐसा ना हो तुम्हारे हाथ से निकल जाए। ठीक है आपदा भाभी, जब इन्हें आयत के माजी से कोई मसला नहीं तो मैं आज शहबाज से बात करती हूँ। ठीक है, फिर तुम बात करो शहबाज से, मैं सलमा खाला को कल ले आऊंगी। वो कहते चली गई। या अल्लाह बस शहबाज राजी हो जाए, इससे बेहतर रिश्ता फिर ना जाने कब मिलेगा, जिसमें ना जहेज की शराइत हैं और फिर शादी भी एक हफ्ते में। वो सोफे की पुर्श से टेक लगाए बैठे थे, नजरें दीवार को घूर रही थी। उन्होंने शादी का फैसला तो बेशक कर लिया था, मगर दिल में कसक सी उठ गई थी। जिंदगी ने दूसरा मौका दिया, मगर अब भी मैं बेबस हूँ। वो अपनी हालत पर खुद ही हंस दिए। अनमता बेशक मेरी बीवी थी, मेरी दोस्त, मेरी हमराज, मगर वो आप नहीं थी।
जब अम्मू जान ने उसे मेरे लिए चुना तो चाहा था दिल में बस उसे ही जगह दूंगा, इससे रिश्ता निभाने में कोई कोताही नहीं करूंगा, मगर आपके वजूद ने मुझे मेरे ही सामने बेबस कर दिया। वो चेहरा जो इन आंखों ने नहीं देखा मगर तसव्वुर से कभी निकला ही नहीं। अनमता से रिश्ता निभाने के लिए मुझे अपने आप को मजबूर करना पड़ा था। मैं उसके साथ मुखलिस रहा, लेकिन शायद मैं वो मोहब्बत नहीं कर सका। मैं बटा हुआ शख्स था जिसमें आपका ना हो के भी आपका हो गया। मैं ये समझ चुका था आपका साथ किस्मत में नहीं, इसलिए तो दिल से निकलने वाली इस दुआ को मैं जुबान ना दे सका, मगर आपके खुश रहने की दुआएं हरदम मेरी जुबान पर विर्द की तरह रहती थीं। इन चंद सालों में मैंने आपको इतना सोचा कि अधूरा पेकर अब अधूरा नहीं लगता, मगर अब एक बार फिर मुझे ज़िंदगी अजीब से मोड़ पर ले आई है। आपके तसव्वुर के साथ मैं अनमता को कबूल कर चुका था। उसने भी तो आपको तस्लीम कर लिया था, मगर फिर वो मुझसे हाथ छुड़ा गई। उसकी मोहब्बत की जंजीरें मेरे पैरों से बंधी हैं, जो मेरी ज़िंदगी का चैन है। मेरा दिल तो किसी को कबूल करने की हालत में नहीं है, क्योंकि वो अब तबाह है, मगर इन्हें माँ की आगोश की ज़रूरत है। पर मेरा दिल नहीं मानता कि कोई इन्हें वो आंचल देगी। ये क्या कह रही हो अरबाब तुम? शहबाज ने हैरत से रुबाब की जानिब देखा, जो उनके सामने कुर्सी पर अब मुतमईन बैठी थी। शहबाज, आप सुकून से तो सोचें, इसमें आखिर क्या बुराई है? बुराई? शहबाज गुस्से से गोया हुए। वो शादीशुदा और 2 बच्चों का बाप है, रुबाब, और फिर हमारी आयत से उम्र में भी कई साल बड़ा। मैं जानती हूँ सब, मगर इसके बावजूद कहूँगी कि ये रिश्ता बेहतर है आयत के लिए। फिर आप खुद बताएं, इतने साल हो गए हैं, कहीं भी बात तय हो पाई? जहाँ हम बात करते हैं वो लोग दोबारा पलट कर पूछते नहीं, और 22 बरस हो गई है, अब छूटी नहीं रही। लोग तरह तरह की बातें बनाते हैं, जहां जाओ बस आयत की शादी का जिक्र। फिर आपको क्या लगता है, जब कम उम्री में किसी ने निगाह नहीं की, आगे चलकर कौन सा रिश्तों की लाइनें लग जाएंगी? बात दुरुस्त थी जो शहबाज को खामोश कर गई, मगर दिल राजी ना हुआ। रुबाब, अभी कोई इतनी उम्र नहीं हुई, आगे कोई बेहतर रिश्ता मिल जाएगा। फिर लड़कियों की तो 30 के बाद भी शादियां होती हैं। इन लड़कियों की शहबाज, जिनके साथ कोई मसला ना हो, जिनके माजी ने इनको स्याही की चादर ना ओढ़ा रखी हो। वो तड़क कर बोली, आपको क्या लगता है मुझे आयत की परवाह नहीं? शहबाज, अभी फिर भी हालात हाथ में है, आगे ना जाने क्या हो। जवान लड़की को सारी जिंदगी बिठा कर तो नहीं रख सकते। मैं जानता हूँ तुम्हें मुझसे ज्यादा आयत की फिक्र है, और तुम भी दुरुस्त हो, वक्त मौका नहीं देता। ठीक है, कल बुला लो तुम, मैं भी पता करना हूँ। अगर रिश्ता मुनासिब लगा तो जो बेहतर होगा वो कर देंगे। शहबाज ने कुछ सोचते हुए सर हिला दिया। आयत अपने घर बार की हो जाएगी तो अम्मी अब्बू की रूह को भी सुकून मिलेगा। मैं भी इनके सामने सुरखरू हो जाऊंगा। उन्होंने गहरा सांस लिया। और रुबाब, आयत से भी बात करो, कल जब वो लोग देखने आए तो वो जहनी तौर पर तैयार हो। मुझे नहीं लगता अभी उसे कुछ कहना चाहिए, पहले इन लोगों से मिल लेते हैं, फिर सब तय पा जाए तो आप ही बता दीजिएगा। कल तो मैं देख लूंगी, आप परेशान ना हो। वैसे भी आबदा भाभी बता रही थी, बस लड़के की दादी ही आएंगी, बाकी लोग सीधा शादी में शिरकत करेंगे। ठीक है, जैसा मुनासिब लगे वो करो। शहबाज कहते सोने के लिए लेट गया। रुबाब के चेहरे पर पुरस्कून सी मुस्कुराहट आई थी। इनके ख्वाब पूरे होने वाले थे। अजलान से अनमता की शादी सलमा बी की ख्वाहिश थी। वो इनके रिश्ते की नवासी थी। जब अजलान अपने बिजनेस में सेट हो गए तो सलमा बी ने इनके सामने अनमता रमज़ान का नाम रखा था। वो वैसे भी अब अपने आप में गुम रहने वाले शख्स थे, इसलिए कभी ध्यान किसी जानिब दिया नहीं। सलमा बी के नाम लेने पर खुशदिली से हाँ कह दी। अनमता से भी इनकी ज़्यादा बातचीत ना थी। वो सीधी सादा तबीयत की मालिक कमगोसी लड़की थी। 2 ही बहनें थीं। वो अजलान भी काम में मगन रहने वाले इंसान थे। इनकी ख्वाहिश अपना कारोबार करना थी। तालीम के बाद उन्होंने शहर में ही रहना पसंद किया था, मगर गांव की जिम्मेदारी भी साथ उठाई। वहाँ की ज़मीनों के हिसाब किताब, फसलों की देखभाल के लिए हफ्तों में चले जाते थे। कुछ माह पहले ही इनकी बात अनमता से तय हुई थी। शादी 1 माह में होना थी। तैयारियां भी लगभग आखिरी मराहल में दाखिल हो गई थी। वो मुतमईन थे, मगर जब किस्मत में रोग लगना लिखा हो तो कोई बच कहाँ सकता है। वो दिन इनकी ज़िंदगी में गहरी छाप छोड़ गया, जैसे इन्हें खाली कर गया। अजलान, आज बेटा जल्दी घर लौट आना। क्यों अम्मू जान, सब खैरियत? डाइनिंग टेबल की कुर्सी खींचकर बैठते हुए उन्होंने ताज्जुब से देखा। खैरियत है बच्चे, आपदा से कल मेरी बात हुई थी। किस बारे में? उन्होंने चाय पीते सरसरी से अंदाज में कहा। हद करते हो अजलान, किस बाबत चर्चा चल रहा है? वो खफासी बोली। तो
ان کا سوال مانو ایسے تھا کہ کچھ علم ہی نہ ہو کسی بات کا۔ سلمہ بی کے انداز پر وہ سنبھلے۔ ایک لڑکی کا ذکر کیا تھا، آبدہ کے محلے دار ہے، رباب انہی کی نند ہے، ماشاءاللہ بہت پیاری بچی ہے۔ بہت تعریف کر رہی تھی آبدہ۔ سلمہ بی کی بات پر وہ گہری سانس کھینچ کر رہ گئے۔ آج وہیں جانا ہے، آبدہ کے دیکھے بھالے لوگ ہیں، اس کی باتوں سے مجھے تسلی ہو گئی ہے، آج جا کر ملاقات ہو جائے گی، تو پھر رخصتی کی تاریخ وغیرہ کل سنوبر کے آنے کے بعد ہم جا کر طے کر لیں گے۔ وہ تو جیسے تمام معاملات مکمل کر چکی تھیں۔ امو جان، پہلے آپ ملاقات کر لیتی، پھر آپا کو بلواتی، انہیں بھی موقع دیں سوچنے کا۔ اذلان پہلے ہی کافی وقت بیت چکا ہے، پھر آبدہ کے ذریعے انہیں سب آگہی ہو چکی ہوگی۔ میں نے خود کہا تھا کہ سب کچھ واضح لفظوں میں ان کے گوش گزار کیا جائے۔ تم بتاؤ کب تک گھر آ سکو گے؟ آپ ہی چلے جائیں امو جان، میرا جانا کوئی خاص ضروری نہیں ہے، آفس سے گاڑی بھجوا دوں گا۔ ٹھیک ہے، جیسا تم مناسب سمجھو۔ اچھا، احمر کو میں اپنے ساتھ لے کر جاؤں گی، ادیرہ کو لالی سنبھال لے گی۔ جی ٹھیک ہے۔ وہ کرسی پیچھے کرتے اٹھ کھڑے ہوئے۔ دل کی کیفیت عجیب ہو چلی تھی، ایک خواہش دل کے نہا خانوں سے باہر نکلنے کے لیے بےتاب ہو رہی تھی۔ معجزے اب کہاں ہوتے ہیں، وہ دھیرے سے سوچتے اپنی بے بسی پر مسکرا دیے۔ آیت کیا کر رہی ہو؟ جی بھابھی، بس یہ برتن دھو رہی تھی، ہلکا سا رخ موڑے کچن کی چوکھٹ میں استادہ رباب کو جواب دیا۔ اچھا ایک کام کرنا، دوپہر میں مہمان آ رہے ہیں تو کھانے کا کچھ اہتمام کر لینا، اور ہاں ساتھ خود کو بھی سنبھال لینا، کہیں لوگ یہ نہ سمجھ لیں کہ ہم نے تمہیں ملازمہ بنا کر رکھا ہوا ہے۔ انداز میں عجیب سی سختی تھی۔ ہاں، لوگوں کی سمجھ ظاہر تک ہی تو محدود ہے، کاش کوئی روح میں اتر جانے کے فن میں ماہر ہو۔ نہ جانے کون آ رہا ہے جو بھابھی اس قدر بے چین سی معلوم ہوتی ہیں۔ بس آج ان کا موڈ بحال رہے، اور یہ خجستہ بدتمیز جب سے محترمہ گئی ہیں ابھی تک فون بھی نہیں کیا ہے۔ سفر کی تھکان 2 دن میں بھی لگتا ہے اتری نہیں۔ کہا بھی تھا کہ مجھے پہنچ کر فوراً فون کرے۔ تصور میں خجستہ سے ہم کلام اسے سخت سست سناتی۔ وہ دوپہر کی تیاریوں میں لگ چکی تھی۔ آیت کھانا تیار ہے؟ جی بھابھی کھانا تیار ہے، جب آپ کہیں گی میں لگا دوں گی۔ ٹھیک ہے، مہمان بھی آتے ہی ہوں گے، تم جاؤ نہا کر لباس تبدیل کر لو۔ اتنا شہد آگ ہی لہجہ نگاہ رباب کے چہرے پر ٹکائے وہ انہیں تک رہی تھی۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو بھائی؟ رباب نے گھورا۔ نہیں کچھ نہیں، وہ ہڑبڑا کر الماری کی جانب بڑھتے بولی۔ ابھی نہا کر ہی نکلی تھی کہ دروازے پر ڈور بیل کی آواز سماعتوں سے ٹکرائی۔ لگتا ہے مہمان تشریف فرما ہے۔ مقدور بھر تیزی سے اس نے بالوں کو سلجھایا، وہ جانتی تھی جلد ہی اس کی پکار ہونے والی ہے۔ رباب بیٹا، میرے آنے کا مقصد تو آپ بخوبی جانتی ہیں۔ بالکل، آپ کا یہاں آنا میرے در پر خوش بختی لے آیا ہے۔ میں آپ کی بے حد مشکور ہوں کہ تمام واقعے کے علم میں آنے پر بھی آپ تشریف لائیں۔ ارے کیسی باتیں کرتی ہو بیٹا، یہ تو قسمت کے کھیل ہیں۔ پھر جو کچھ آیت کے ساتھ پیش آیا اس میں اس کا کیا قصور؟ مجھے خوشی ہوگی کہ آپ لوگ آیت کا ہاتھ میرے پوتے اذلان کے ہاتھ میں دیں گے۔ زیست کی تلخیوں کو دونوں مل کر دور کریں، اور جو سانحہ دونوں بچوں پر گزرا ہے ایک دوسرے کو شاید بہتر طریقے سے سنبھال بھی لیں گے۔ انشاءاللہ آنٹی، کیوں نہیں؟ اچھا رباب، ذرا آیت کو بلا لو تاکہ سلمہ بھی مل لے۔ جی میں بلاتی ہوں۔ رباب مسکراتے ہوئے اٹھ گئی۔ آیت وہ آنکھوں میں کاجل لگا رہی تھی جب رباب کی آواز کان میں پڑی۔ جی بھابھی، وہ رک کر ان کی جانب متوجہ ہوئی۔ جب کمرے میں آ چکی تھیں، تیار ہو چکی ہو تو چائے لے کر لاؤنج میں آ جاؤ۔ جی بھابھی، وہ دوسری آنکھ میں کاجل لگاتے کچن میں چلی گئی۔ ایسے کون سے مہمان آئے ہیں جو بھابھی؟ کہیں پھر سے اس خیال کے آتے اس پر جیسے تھکن سی اتر آئی تھی۔ یہ مسافت بہت لمبی اور خاردار ہے، میرے قدموں میں سکت نہیں، ان پر تو پہلے ہی آبلے پڑ چکے ہیں۔ دل پر جیسے تھکن نے بسیرا کر لیا تھا، مگر جبر ضروری تھا۔ السلام علیکم ٹرے ٹیبل پر رکھتے شائستگی سے سلام کیا تھا۔ وعلیکم السلام، جیتی رہو، سلمہ بی نے محبت سے جواب دیا تھا۔ اس نے ایک نظر سب پر ڈالی تو نگاہ معصوم سے چہرے پر ٹھہر گئی۔ وہ کافی اشتیاق سے اسے ہی تک رہا تھا۔ وہ مسکرا دی اور چائے پیش کرنے لگی۔ بھائی چائے تو بہت ذائقہ دار بنی ہے، سلمہ بی نے کھلے دل سے تعریف کی۔ وہ متشکرانہ انداز میں مسکرا دی۔ آپ کی چوڑیاں بہت پیاری ہیں۔ احمر کی آواز پر وہ اس کی جانب متوجہ ہوئی تھی جو اب سلمہ بی کے پاس سے اٹھ کر اس کے پاس آ کھڑا ہوا تھا۔ دل کی حالت عجیب تھی، وہاں بیٹھے رہنا دشوار تھا۔ اس وقت تو اسے اپنا آپ بھی دھوئیں میں تحلیل ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ اب جب وہ معصوم بچہ اس کی چوڑیوں کو کھنکا رہا تھا تو وہ دل میں مسکرا اٹھی۔ آپ کو اچھی لگی ہیں؟ بے ساختہ وہ اس کی حرکت پر مسکرائی۔
کیا آپ مجھے یہ دے سکیں گی؟ احمر کا سوال اسے چونکا گیا۔ اپنے بہت قریب کسی کی آواز گونجی، کیا یہ آپ مجھے دے سکتی ہیں؟ سماعتوں نے کچھ اور سننے سے انکار کر دیا۔ دل میں کسی کے فکرے پوری جان سے گونج رہے تھے۔ یہ آگہی کی گھڑی تھی، یہ تو تباہیوں کا اعلان ہوا تھا۔ آنٹی، ہوش کی دنیا میں آنے کے لیے پوری ہمت صرف کی تھی اس نے۔ جی کیوں نہیں، یہ لیں آپ۔ اپنے دل کی آواز پر اس نے پردے ڈالے، نہیں تو کسی کا عکس اس کی آنکھ میں جھلک پڑتا۔ واؤ، آپ کے پاس تو کلرفل سی برڈ ہے۔ صحن میں موجود پنجرے میں آسٹریلین فنچز کو دیکھتے احمد چہک اٹھا۔ آپ نے پیار کرنا ہے انہیں؟ اس وقت اسے خود سے بھی چھپنے کی ضرورت تھی۔ احمد میں متوجہ ہو گئی اور یہ عمل کارگر ثابت ہوا تھا۔ جی، احمد کے سر ہلانے پر آیت نے اجازت طلب نظروں سے سلمہ بی کی جانب دیکھا جو اسی طرف رخ کیے ہوئے تھیں۔ لے جاؤ بیٹا، اس میں پوچھنے والی کیا بات ہے؟ وہ مسکرا کر بولیں تو احمد کو اس نے گود میں بھر لیا۔ بھئی، ہمارے شہزادے نے اپنا نام تو بتایا ہی نہیں۔ پنجرے سے ایک پنچھی پکڑتے اس نے احمد کی جانب بڑھاتے کہا تھا، احمد اور میری بہن کا نام ادیرہ۔ آپ کو پتہ ہے وہ بہت پیاری ہے۔ چھوٹو سی پنچھی کے سر پر انگلی پھیرتے وہ معصومیت سے گویا ہوا تو وہ بے ساختہ مسکرا دی۔ اچھا، ماشاءاللہ بھائی، اور آپ اپنی چھوٹو سی بہنا کو ساتھ نہیں لائے؟ نہیں، وہ گھر پر ہے، چھوٹو سی ہے نا، اس لیے۔ او ہاں، اچھا تو احمد کون سی کلاس میں ہے؟ اس نے واپس پنچھی کو پنجرے میں ڈالا۔ ٹریپ 2 میں، احمد نے 2 انگلیوں کو جوڑتے کہا۔ پر آپ کو پتہ ہے ٹیچر مجھے بہت ڈانٹتی ہیں، پر رومی کو نہیں ڈانٹتی۔ وہ شکایتی انداز میں منہ پھلاتے ہوئے بولا تھا۔ او کیوں بھائی، یہ ہمارے اتنے پیارے احمد کو ٹیچر کیوں ڈانٹتی ہیں؟ آیت کو اس ننھے سے بچے سے باتیں کرنا بہت بھایا تھا۔ زندگی کے تلخ یادیں اس لمحے کہیں جا سوئی تھیں۔ اسے گود میں اٹھاتے اور کچن کی طرف لے آئی۔ خوبصورت سی کشش تھی جو اسے احمد کی جانب متوجہ کر رہی تھی۔ آپ یہاں بیٹھو۔ کاؤنٹر پر جگہ بنا کر احمد کو بٹھایا اور اسے بسکٹ پکڑایا۔ میں ہوم ورک نہیں کرتا نا، اس لیے۔ کیوں نہیں کرتے آپ؟ احمد کے انداز پر وہ ہنسی۔ یعنی جب مما ہوم ورک کرواتی ہیں تو آپ کھیل میں لگ جاتے ہوں گے، اس لیے نا؟ آیت نے اس کے گال کو چوما۔ نہیں آنٹی، مما نہیں کرواتی، بابا کرواتے ہیں، مگر وہ بھی دیر سے آتے ہیں، اس لیے میں نہیں کرتا۔ مما نہیں کرواتی کیوں؟ بریانی کا چمچ ایک سائڈ پر رکھتے وہ مکمل طور پر متوجہ ہوئی۔ میری مما نہیں ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ احمد کے لہجے میں گھلی اداسی آیت کو اپنے دل پر محسوس ہوئی تھی۔ ادھیرا بھی مما کو بہت یاد کرتی ہے، ہر وقت بس روتی رہتی ہے۔ بابا تو اپنے آفس میں ہوتے ہیں، لالی اسے چپ کرواتی ہے، جب نہیں ہوتی تو ڈانٹتی بھی ہے۔ ناخن چباتے جیسے وہ اسے شکایت کر رہا تھا۔ لالی ادھیرا پر غصہ کرتی ہیں تو آپ نے بابا یا دادو کو نہیں بتایا؟ نہیں، لالی کہتی ہے اگر بتایا تو بہت مار پڑے گی۔ آیت نے افسوس سے آنکھیں میچ لیں۔ چلو اب میں آپ کو اور بہت ساری برڈز دکھاتی ہوں۔ احمد کے چہرے کی اداسی محسوس کر کے وہ بولی۔ مقصد دھیان بھٹکانے کا تھا۔ وہ جانتی تھی ماں باپ کے نہ ہونے کا دکھ کیسا ہوتا ہے۔ دنیا ہاتھوں کی کٹ پتلی بنا دیتی ہے، اور پھر احمد اور ادیرہ تو ابھی چھوٹے تھے۔ آپ سے مل کر بہت اچھا لگا، اور ماشاءاللہ آیت تو بہت ہی پیاری بچی ہے۔ آپ بس ہمیں ہاں میں جواب دے دیں تو ہم جلد ہی اسے رخصت کر کے اپنے گھر لے جائیں۔ جی انشاءاللہ ہم جلد ہی آپ کو بتائیں گے۔ آپ جیسے مخلص لوگوں سے رشتہ جوڑنا ہمارے لیے بھی خوشی کی بات ہے۔ رباب کے وجود میں خوشی پھوٹ رہی تھی۔ ان کے بس میں ہوتا تو ابھی ہاں کہہ دیتی، مگر پھر خاموش رہی تھی۔ کیا دعا مانگ رہی تھی؟ احمد کو بوسہ دیتے وہ سامنے مسلح اٹھاتے انمتا سے گویا ہوئے۔ بتا دوں آپ کو، وہ ان کے سامنے بیڈ پر آ بیٹھی۔ نگاہ میں محبت تھی۔ بالکل، کیوں نہیں؟ وہ اکثر شرمندہ ہوتے تھے۔ وہ ان کے دل پر ہاتھ رکھتی تھی، مگر انجان لڑکی پورے قدم سے کھڑی تھی کہ وہ بے بس ہو چلے تھے۔ یہی کہ وہ آپ کا نصیب بن جائے جو آپ کا دل بن گئی۔ بہت عام سے انداز میں انمتا نے کہا تھا۔ انمتا گھڑی اتارتے ان کے ہاتھ غیر متحرک ہوئے تھے۔ اذلان مجھے نہیں معلوم، بس میں چاہتی ہوں وہ آپ کو مل جائے، آپ کا دل آباد ہو جائے۔ میں اللہ سے ہر لمحے دعا کرتی ہوں کہ کوئی معجزہ ہو جائے۔ میں تمہارے ساتھ خوش ہوں انمتا، کیوں خود کو ہلکان کرتی ہو؟ وہ اس کے ہاتھ تھام کر گویا ہوئے۔ کس نے کہا میں خود کو ہلکان کر رہی ہوں؟ محبت کرنا گناہ نہیں، یہ دل کی سودے ہے، کوئی زبردستی نہیں ہے۔ بس میری بہت خواہش ہے، ایک بار ہی صحیح پریوش کو دیکھنا چاہتی ہوں، ملنا چاہتی ہوں ان سے۔ وہ جذب کے عالم میں گویا ہوئی۔ نہ جانے اس کے دل میں اتنی وسعت کہاں سے آ گئی تھی۔ اذلان بس اسے دیکھے گئے۔ نہ جانے تم کون سی نیکی کا صلہ ہو انمتا، وہ بے ساختہ کہہ گئے۔ آپ اچھے انسان ہیں اذلان، آپ نے کبھی مجھے کوئی دکھ نہیں دیا، یہ جانتے ہوئے بھی
کہ अम्मी ने मेरी शादी आपसे सिर्फ आपकी दौलत देखकर की। आपने कभी मुझे इस बात का ताना नहीं दिया, मुझे इज्जत दी, मान दिया। ये मोहब्बत की ही दूसरी शक्ल है। अम्मी की भी हमेशा इज्जत की है आपने। अनमता, वालिदैन अपने बच्चों के लिए अच्छा ही सोचते हैं, उन्होंने भी ऐसा सोचा तो क्या गलत किया। वैसे इस बात से याद आया, मैंने गांव में ज़मीन खरीदने का इरादा किया है। वो एकदम बोल उठे, अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। अनमता ने फीडर अहमर के मुंह से लगाई। तुम्हारे नाम से। अजलान के अगले फिक्रे ने उसे चौंका दिया। आप, मगर क्यों? अभी कुछ वक्त पहले तो आपने मेरे नाम वो फ्लैट लिया था। क्या ज़रूरत है इनसे, इन सब की? आप जानते हैं मुझे इन सब शय की बिल्कुल भी ख्वाहिश नहीं। आपका साथ मुझे मुयस्सर है, मेरे लिए यही बहुत है। वो कतई लहजे में गोया हुई। ये मेरी ख्वाहिश है भाई। वो मुतबसम से गोया हुए। बीवियां तो खुश होती हैं जब शौहर उन्हें तोहफा देता है। तुम मुझे घूर रही हो? वो शरारत से बोले। अच्छा, आपको बहुत खबर है। खैर, तोहफा ही देना है तो मुझे कहीं घुमाने ले जाएं। कब से आपसे कह रही हूँ, मगर आपको तो वक्त ही मुयस्सर नहीं है। अरे भाई, मैंने तो कहा भी है, तुम इकरा के साथ जहाँ चाहे चली जाओ। बल्कि इकरा तो मुझसे कह रही थी इसका दुबई जाने का इरादा है। उफ, मगर मैं आपके साथ जाना चाहती हूँ भाई। ओह, तो ये बात है। ठीक है, ले चलेंगे घुमाने भी, मगर पहले खाना तो लगवा दो यार, बहुत भूख लग रही है। ठीक है, आप कपड़े बदले, मैं लगाती हूँ। वह हंसी हुई उठ खड़ी हुई। अनमता, बिलाशुबा तुम अनमोल हो। तुम्हारी जगह कोई और होती तो ये घर जहन्नुम हो जाता। वो गहरे सांस लेकर रह गए। वो बातों का रुख दूसरी जानिब करते अनमता को उसके मौजू से हटाना चाहते थे, जिसमें कामयाब भी रहे थे। शहबाज, मुझे वो काफ़ी सुलझे और समझदार लोग मालूम हो रहे हैं। आयत के माजी के बारे में सब कुछ जानकर भी शादी के लिए तैयार हैं। मुझे तो ये रिश्ता आयत के लिए ठीक लग रहा है। रुबाब बेड पर आ बैठी। हाँ, काफ़ी नाम है उनका, मैंने पता किया था। सोचा आज ही देख लूँ। गांव में भी काफ़ी ज़मीनें हैं, यहाँ भी कारोबार जमा हुआ है। वो भी मुतमईन से दिखाई दिए। फिर क्या ख्याल है आपका? रुबाब पुरजोश हुई। ख्याल तो नेक है, मगर आयत से भी तो मालूम करना है ना। अरे, मालूम क्या करना है, आप चलकर बात करें। आपसे बेहतर भला कौन समझा सकेगा उसे। और समझदार है वो भी जानती है हालात क्या हैं। रिश्ता आ गया सब जानकर, यही बहुत है। वरना पूरे खानदान में मेरा उठना बैठना मुहाल हो गया है। अब झटपट शादी हो जाएगी तो बेहतर होगा, लोगों के मुंह भी बंद हो जाएंगे। कह तो तुम ठीक रही हो, मगर नगीन खाला वो अभी दुबई गई हैं, इनसे बात भी तो करना है, शहबाज ने कहा था। हाँ बिल्कुल नहीं शहबाज, इनसे बिल्कुल अभी कुछ मत कहिएगा। इतना अरसा हो गया, आपने देखा नहीं, जब भी कोई रिश्ता आया है वो कोई ना कोई खामी निकाल देती हैं। ये अच्छा मौका भी है, वो यहाँ मौजूद भी नहीं है। अब इतना ही अगर वो आयत को अपना सगा समझती तो उसकी रिश्ते के लिए कुछ करती, मगर नहीं। रुबाब सख्त बरहम हुई थी। शहबाज ने गहरी सांस ली। मगर जब इन्हें इल्म होगा वो मैं संभाल लूंगी। आप अभी आयत से बात करने चले। शहबाज क्या कहते, वो खुद भी इस रिश्ते पर राजी थे, इसलिए उठ खड़े हुए। इस सोच को भी कभी मैंने जहन में आने नहीं दिया। एक अरसा पहले दो आंखें मेरे जहन के पर्दे पर अपना अक्स छोड़ गई थी। मैंने कभी सोते हुए भी इन आंखों का ख्वाब नहीं, खुद की हैसियत पता थी मुझे। मैं कौन थी मुझे अंदाजा था। मैं चांद नहीं पा सकती, ना मेरा दामन सफेद है जो आप मुझे मिल पाते। ये मेरा दिल ही जानता है कि किस मुश्किल से मैंने इस मुस्कुराहट से पीछा छुड़वाए रखा था जो मेरे दिल की रफ्तार बढ़ा देती थी। मैंने फिर कभी गलत रास्ता नहीं पकड़ा, मगर फिर सही रास्ते पर आप मेरे सामने आ गए। चलो, इस तरह मुझे ये इल्म हो गया कि आप अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश और मुतमईन हैं। आपका बेटा है। मेरे दिल के सुकून के लिए यही बहुत है। हाथ में थामी किताब पर निगाह जमाए वो सोचों में गुम थी। जब शहबाज ने दरवाजे पर दस्तक दी तो वो चौंकी। आयत, मुझे तुमसे ज़रूरी बात करना है। उन्होंने फिक्रों को तरतीब देना शुरू किया था। जी कहें भाई। आयत, अम्मी अब्बू के बाद मैंने पूरी कोशिश की कि तुम्हें कोई परेशानी ना हो। रुबाब ने भी इन सब में मेरा बहुत साथ दिया है। शहबाज की बात पर अंदर आते रुबाब पर उसकी नज़र ठहर गई। आपको कहाँ कुछ खबर भाई? उसके लब फड़फड़ाए थे, मगर आवाज़ ना निकली। बिल्कुल, अब देखो ना, तुम्हारी वजह से ही हमने घर बदला, बल्कि शहर तब्दील किया। यहाँ तक कि शहबाज ने कतर वाली ऑफर भी नहीं ली, जबकि अभी तक इनके ऑफिस वाले पीछे पड़े हैं। रुबाब ने टुकड़ा जोड़ा था। आयत गहरी सांस लेकर रह गई। जानती थी भाभी को कितना शौक था बैरूनी मुल्क में रहने का। शहबाज ने आंखों के इशारे से रुबाब को मना किया। दरअसल आयत, हमने एक फैसला किया है और उम्मीद है तुम्हें कोई एतराज नहीं होगा। हम तुम्हारा बुरा तो नहीं चाहेंगे ना? कैसा फैसला भाई? आयत का दिल हौला। अब क्या होने वाला था? दरअसल हमने तुम्हारा रिश्ता तय कर दिया है। कोई धमाका था जो उसके जहन पर हुआ था, दिल पर वजन बढ़ा था। बेटा,
ہم تو کب سے کوشش میں لگے تھے کہ کوئی مناسب رشتہ مل جائے تو تمہارے فرض سے سبکدوش ہو جائے، مگر وجہ تم بھی جانتی ہو۔ اب جو رشتہ آیا وہ ہمیں بھی پسند ہے اور انہیں بھی تم بہت پسند ہو۔ ہماری طرف سے تو ہاں ہے، مگر میں نے سوچا کہ تم سے پوچھ لوں۔ فیصلہ کر لیا ہے آپ لوگوں نے؟ آیت کی آہستہ آواز میں پوچھا۔ دیکھو آیت، یہ بات تم بھی اچھی طرح جانتی ہو کہ یہ سب کتنا مشکل ہے، ویسے ہی کوئی رشتہ دینے کو تیار نہیں۔ سب یہ سن کر خاموش ہو جاتے ہیں کہ لڑکی طلاق یافتہ ہے۔ رباب کی بات نے اس کے سینے میں خنجر ڈال دیا تھا۔ اب جب کوئی ایسے لوگ ملے ہیں جو تمہیں ایسے ہی قبول کرنے ہیں تو ہمیں نہیں لگتا کہ فیصلہ کرنے میں دیر کرنی چاہیے تھی۔ آیت نے نظر اٹھا کر شہباز کی جانب دیکھا کہ وہ شاید رباب کو کچھ کہے، مگر وہ خود بھی تو ان کی باتوں سے متفق لگے۔ آیت، میں چاہتا ہوں تمہیں عزت سے تمہارے گھر کا کر دوں کہ امی ابو کو سکون مل جائے۔ لڑکا بھی اچھا ہے، بس شہباز رکے، اس کے 2 بچے ہیں اور بیوی کا انتقال ہو گیا ہے، بالآخر وہ کہہ گئے، جبکہ آیت کو لگا اس کا سانس رک گیا ہے۔ اس نے بے یقین سا ہو کر شہباز کی جانب دیکھا تو وہ نگاہ چرا گئے۔ دوپہر میں جو خاتون آئی تھی ان کا پوتا ہے ازلان۔ آیت کی نگاہوں کے سامنے وہ 4 سال کا معصوم بچہ گھوم گیا تھا۔ اس کی وہ ویران آنکھیں ہفتہ 10 دن میں شادی کرنا چاہتے ہیں، وہ بھی سادگی سے۔ شہباز نے مزید آگاہ کیا، ٹھیک ہے بھائی، جب آپ نے فیصلہ کر ہی لیا ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ آنسو پیتے اس نے کہا، شکریہ آیت، مجھے تم سے یہی امید تھی کہ تم انکار نہیں کرو گی۔ شہباز نے مسکراتے ہوئے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ ہم ظاہر سی بات ہے یہ رشتہ ملنا بھی غنیمت ہے، ورنہ رباب نے بات ادھوری چھوڑی۔ شہباز اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر اٹھ گئے تھے، رباب بھی ان کے پیچھے تھی۔ وہ اوندھے منہ بستر پر گر گئی، چیخ چیخ کر رونا چاہتی تھی مگر آنسو سوکھ گئے تھے۔ میرے دامن میں اگر طلاق کا دھبا لگا ہے تو میں قصوروار کہاں ہوں؟ یہ میرا اپنا انتخاب تو نہیں تھا، پھر کیوں؟ وہ سسک اٹھی، لیکن اگر یہی میری قسمت ہے تو ایسا ہی صحیح۔ آنکھوں میں آئے موتیوں کو اس نے بے دردی سے صاف کیا۔ ذہن کے پردے پر 9 سال پرانا زخم ابھرا تھا، ایسا زخم جو آج تک نہ بھرا تھا۔ نیکسٹ ایپیسوڈ انشاءاللہ جلد ہی۔